Good morning, my dear students. I hope you all are fine and you all are enjoying the English class. From first flight I have been taking this lesson is taken from first flight book. His first flight I have been teaching you. So today I will continue from there where I had stopped. Okay, after that. So I welcome you on this digital platform of learning. I welcome you in this English class. You will be enjoying the class. So already I have told about the author Liam O'Flaherty, and I have been teaching in this lesson his first flight. So as I have already given you the brief introduction of the story, still I want to do some briefing. So the young seagull, he wants to fly, but he is scared of flying. Okay, so his parents, his brothers and sister leave him on the ledge alone, and they fly to some other ledge in front of that. His parents left him alone so that he could try to fly, because he is scared of flight. He is scared of taking his first flight. So the young seagull's parents leave him there. And we also read that his brothers and sisters' wings were short, yet they could fly freely. But this young seagull, the younger one, young seagull, he wanted to fly, but he was scared of flying. The seagull was scared of flying, the younger one. Do you remember? So, why he could not fly? Because he could not muster courage, he could not gather courage. Okay? He was not courageous enough to take his first flight. Okay? That's why he could not fly. So, till spirit I have taught you. His father and mother had come around. उसके माता पिता had come around calling to him shrilly. So what happened? This young seagull's parents had been calling to him shrilly. Shrilly means loudly, loud noise. Shrilly का मतलब होता है loud noise. Okay? Upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. तो उसके माता पिता उसको ऊपर जोर जोर से बोल रहे थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे. Shrilly मतलब speaking loudly, making loud noise, threatening, उसे धमकी भी दे रहे थे. Upbraiding him, threatening. Upbraiding का मतलब होता है डांटना, scolding. See, the meaning is written over here. Upbraiding means scolding. So his parents were scolding him, threatening him to let him starve. उसे भूखे रहने के लिए वहाँ अकेले लेज पर छोड़ दिए थे उसके पेरेंट्स. इसलिए छोड़े थे कि जैसे उसे भूख लगेगी उड़ने की कोशिश करेगा और तब वो उड़ना सीख जाएगा. He would learn to fly. Who? The young seagull. But for the life of him, he could not move. लेकिन जिंदगी किसको प्यारे नहीं होता है, प्यारा नहीं होता है. हर किसी को, हर जीव जंतु को जिंदगी प्यारा होता है. Life is very dear to everyone, and his life was very dear to him.
and he was very scared of flying. That's why he could not move from there. That was 24 hours ago. 24 घंटे बीत गए थे, 24 hours हो चुके थे. Since then nobody had come near him. और उस वक्त से कोई उसके पास नहीं आया था. Since then nobody had come near him. कोई उसके नज़दीक नहीं आया था. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. The day before, all day long. और एक दिन पहले, day before, उससे एक दिन पहले, okay? All day long, सारा दिन. All day long means सारा दिन. He had watched his parents flying about. एक दिन पहले की बात है. सारा दिन ये यंग सीगल जो है अपने पेरेंट्स को देखता रहा, अपने माता पिता की तरफ उसका ध्यान रहा. उसके माता पिता सारा दिन उड़ते रहे और ये देखते रहा. कौन? यंग सीगल हु इज अलोन ऑन हिज लेज, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ लाइट. और क्या देखता रहा यंग सीगल? ये सबसे छोटा सीगल जो था, ये 3 भाई बहन थे. तो 2 भाई ट्रेंड थे उड़ने में और उसकी बहन भी ट्रेंड थी. टोटल they were 4 brothers and sisters. Who? The young seagull. They were total 4 brothers and sisters in number. और ये सारा दिन क्या देख रहा था? इसके माता पिता ट्रेन कर रहे थे इसके भाई बहन को, इसके 2 भाई और बहन को अच्छा से. They were making His parents were making them perfect in the art of flight. उसको परफेक्ट बना रहे थे, उसे सिखा रहे थे. परफेक्टिंग मतलब टीचिंग. परफेक्टिंग का मतलब होगा टीचिंग, ट्रेनिंग या टीचिंग. टीचिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. उनको ट्रेन कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे उड़ने का. कौन? इसके माता पिता, इसके बाकी के भाई बहन को. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. और ये भी सिखा रहे थे इसके माता पिता किस प्रकार जो पानी के तरंगे होती है, लहर होते हैं, पानी के लहर होते हैं ना, समुद्री लहर, समुद्र के जो लहर होते हैं, उसको किस प्रकार से स्किम किया जाता है. स्किम करना मतलब कैसे छू के फिर ऊपर आ जाना, अपने पैर को थोड़ा सा डुबा के कैसे ऊपर उड़ जाना, ये सिखा रहे थे. उसी को बोलते हैं स्किम. ओके, टू मूव लाइटली जस्ट अबव द सरफेस. हियर द सी. किस प्रकार से उस सी के सतह के ऊपर, किस प्रकार से उसके सरफेस जो है उसके ऊपर कैसे उड़ना चाहिए. ऐसे लगेगा कि समुद्र के पानी को लोग टच कर रहे हैं, थोड़ा सा टच करेंगे, टच करते हुए कैसे उड़ना है, छू कर कैसे उड़ना है, उसका मतलब होता है स्किम. ओके, हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और किस प्रकार से मछली पकड़ना है. तो यंग सीगल के भाई बहन को इसके माता पिता सिखा रहे थे कि किस प्रकार से मछली पकड़ना है. किसको? उसके भाई बहन को सिखा रहे थे कि डाइव करके किस पर. डाइव करके मतलब झपट कर. डाइव करना मतलब झपट कर, समुद्र के पानी में झपट कर, जैसे मछली ऊपर आए झपट कर खींच लेना मछली को. ओके, यही चीज सिखा रहे थे. He had in fact seen his elder brother catch his first herring. और फैक्ट यह है, सच्चाई यह है कि यह यंग सीगल ने देखा अपने बड़े भाई को किस प्रकार पहला हेरिंग मछली पकड़ा है. ठीक है, हेरिंग मछली जो होता है समुद्री मछली होता है. इट्स अ सी फिश एंड इट्स वेरी सॉफ्ट. सॉफ्ट फिन्स भी होते हैं इसके. ओके, दिस इज अ वेरी सॉफ्ट फिश नेम्ड हेरिंग. सो इट इज अ सी फिश. तो उसके भाई, उसका बड़ा भाई किस प्रकार से हेरिंग मछली को डाइव करके पकड़ रहा है. ठीक है, तो उसने ये यंग सीगल ने देखा एंड डिवोर इट. और इसे किस प्रकार वो खाता था, उसको टीयर करके. इसका बड़ा भाई मछली को पकड़ा है, हेरिंग मछली को, और पैर से दबाकर उसको चीर कर कैसे खा रहा है, वो ये देख रहा था. कौन? यंग सीगल. ओके, फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. और
वो एक पत्थर के ऊपर, एक चट्टान के ऊपर उसका बड़ा भाई खड़ा होकर अपने पैरों में दबाकर, अपने पैर से उस मछली को दबाकर उसको चीर चीर कर खा रहा था, बार बार अपने बीक को बार बार शार्प भी कर रहा था। ओके, और उसका माता पिता क्या कर रहे थे? दे सर्कल अराउंड हिम, अराउंड हिज एल्डर ब्रदर, हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड हिज एल्डर ब्रदर एंड दे वर गिविंग अ प्राउड कैकल। ओके, दे आर रेजिंग अ प्राउड कैकल। प्राउड कैकल का मतलब कैकलिंग साउंड कर रहे थे और अभिमान से वो खुश होकर घूम रहे थे उसका माता पिता उसके चारों तरफ कि उसका सबसे बड़ा पुत्र है, किस प्रकार मछली के टुकड़ों, मछली को पकड़कर किस प्रकार खा ले रहा है अपने, किस प्रकार वो शिकार कर पा रहा है मछली का। तो इस बात से वो बहुत संतुष्ट थे। दे वर सेटिस्फाइड। हु? हिज पेरेंट्स। हुज पेरेंट्स? द यंग सीगल्स पेरेंट्स। Okay, they are too much satisfied and they were very proud of their elder son who was catching his own prey and devouring it. So it was a matter of happiness for them. Okay, it's clear. And all the morning the whole family had walked about a big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारा सुबह होल फैमिली, सारा परिवार, उसके परिवार, सारे परिवार हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू। वो बड़ा सा जो प्लेटू रीजन है उस पर वॉकिंग कर रहे थे, मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ। और इसका सारा परिवार उसके अपोजिट में एक चट्टान था, मतलब प्लेटू रीजन था, उसके अपोजिट में। मानो यहाँ पर ये सीगुल था, इसके सामने एक और प्लेटू रीजन था और वहाँ पे वो भी लेज था वहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ पर सीगुल है, यंग सीगल है और इधर उसके पेरेंट्स और भाई बहन हैं। ठीक है, आमने सामने। ये है समुद्र में। तो यह यंग सीगल अपने भाई बहन को देख पा रहा था। ठीक है, ऑपोजिट क्लिफ पर। क्लिफ मतलब चट्टान। ठीक है, और वो लोग क्या कर रहे थे? पूरा परिवार वहाँ जमा हुए थे उस चट्टान पर अपोजिट साइड में, और ये देख पा रहे थे कि किस उसको बार बार ताना दे रहे थे। टॉन्टिंग ही मतलब ताना देना, कमेंट करना, उसका मजाक उड़ा रहे थे वो लोग। ठीक है, कि वो बहुत ही कावर्ड था। ही वॉज कावर्ड। वो अपना डरपोक बुद्धि जो दिखा रहा था यंग सीगल, मैंने एक्ट ऑफ ब्रेवरी नहीं दिखा रहा था, इसी कारण वो लोग टॉन्ट कर रहे थे, बुरा भला कर रहे थे। उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, हाँ, उसके भाई बहन उसको ताना दे रहे थे। ठीक है, घर में कोई ऐसा काम नहीं कर पाने से घर के लोग ताना देते हैं। इसी प्रकार ये भी उसके परिवार के सदस्य थे जो कि ये यंग सीगल को ताना दे रहे थे। ओके, फॉर हिज कावर्डिस एक्ट, उसका डरपोक बुद्धि के लिए। इज इट क्लियर? द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूर्य आकाश में दिखाई दे रहा था, सूर्य आकाश में उगा हुआ था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और सूर्य का किरण, सूर्य का प्रकाश चमक रहा था। वो जहाँ जो लेज पर बैठा हुआ था उस लेज पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था। ठीक है, दैट फेस्ड द साउथ, दो दक्षिण तरफ फेस किया हुआ था। ठीक है, देखो सन, ये लाइन शूटिंग से समझना। नाउ एसेंडिंग मतलब उगा हुआ था। एसेंडिंग जानते हो ना, छोटा से बड़ा हम लोग कैसे नंबर संख्या को करते हैं, सजाते हैं, स्मॉल टू बिगर। इसी प्रकार एसेंडिंग द स्काई मतलब इट वाज सीन इन द स्काई, उसी समय उगा हुआ था, सुबह का समय था। एंड इट वाज ब्लेजिंग ऑन द लेज। ब्लेजिंग का मतलब हुआ फीलिंग, actually hot sun rays were falling on the ledge. Okay, that faced the south, a ledge had faced toward the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, and this young seagull was feeling the heat of the sun, and he was feeling weak and tired because he had not even eaten anything
द प्रीवियस डे, 24 घंटा हो गया उसे कुछ खाए पिए, और उसके माता पिता उसे जानबूझकर छोड़ दिए थे, क्योंकि भूख लगेगा तो अपने उड़ेगा, अपने उड़ कर जाएगा अपने शिकार करने। तो उसके सबक सिखाने के लिए, उसको सही रास्ते पर लाने के लिए वो ऐसा किए थे। तो ये सब होता है मोटिवेशन से। तो यही प्रेरणा हो जाती है, यही प्रेरणा बन जाती है। उसको सजा दिए है उसको भूखा रहने का, लेकिन यही भूखा रहना उसके लिए एक प्रेरणा बन जाएगी बाद में जब वो उड़ पाएगा। ठीक है, यही सोच के उसके माता पिता उसे अकेले लेज पर छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो भूख से तड़प कर उड़े, भूख से तड़प कर अपने भूख को मिटाने के लिए उड़ेगा, अपने शिकार करेगा और अपना भोजन इकट्ठा कर पाएगा। तो वो चाहते थे कि यंग सीगल को के अंदर करेज आ जाए। ही मस्ट बी करेजियस एनफ टू फ्लाई इन द एयर एंड हंट हिज ओन प्रे। ओके, ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, और धीरे से वहाँ से उठा। ओके, लेज का जो आखिरी भाग था, ये आखिरी भाग में अगर चले जाएगा तो गिरने का डर रहेगा। लेज का कल मैं दिखाया था ना लेज को, तो आखिरी पॉइंट को बोलते हैं ब्रिंक। जैसे ये देख लो, पिक्चर में दिखा देता हूँ, ये वो आखिरी पॉइंट, दिस इज ब्रिंक, दिस इज ब्रिंक। ओके, दिस इज ब्रिंक। ओके, ब्रिंक को ना कॉर्नर कर सकते हो। ठीक है, सो ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। लेज के आखिरी भाग तक वो धीरे धीरे गया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा हो गया, विद द अदर लेग हिडन, और दूसरा पैर को छिपा लिया, अंडर हिज विंग, अपने पंखुड़ियों के अंदर छिपा लिया। ठीक है, दूसरे पैर को। He closed one eye, then the other. तो क्या किया, धीरे धीरे ब्रिंक ऑफ द लेज के पास गया, वहाँ खड़ा हुआ एक पैर पर, दूसरा पैर को अपने पंख में छिपा लिया, अपने एक आंख बंद किया और फिर दूसरी आंख बंद किया, यह दिखाने के लिए कि उसे नींद आ रही है, और उसके माता पिता उसे देखे कि वो आखिरी पड़ाव पर है, हाँ, अंतिम छोर पर है, ब्रिंक में छोर, अंतिम छोर पर है उस लेज का, और वहाँ कहीं गिर न जाए पानी में। तो एक्टिंग कर रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग टू फील लाइक दैट, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू फील स्लीपी। हु? द यंग सीगल। ओके, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू feel sleepy. He wanted to show that he is in his drowsy position. Okay, so that his parents could see him and they would come to him for his rescue. Okay, that's why he was acting like that. Then the other, see, this is the ledge, and how his parents, his brothers and sister, they are flying to some other ledge. कोई और लेज पर ये लोग जा रहे हैं वहाँ उड़कर, उसको अकेले छोड़कर। ठीक है, उसको उठाकर लेकर जा सकते थे, लेकिन जानबूझ के उसको वहाँ छोड़ दिए कि ये उड़ना सीखे। Then the other and pretended to be falling asleep. क्या किया, जो मैंने कहा, he pretended to fall asleep. वो बहाना कर रहा था सोने का, जो उसके माता पिता सोचे कि वो सो रहा है। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dodging with their heads sunk in their necks. और वो लोग इसका बिल्कुल परवाह नहीं किए। इसका माता पिता इस यंग सीगल को ऐसा अवस्था में देखकर इसकी थोड़ा भी परवाह नहीं किए, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए। इसने देखा इसके दो भाई बहन लाइंग ऑन द प्लेटू, वो लोग प्लेटू पठारी भाग पर लेटे हुए थे। ठीक है, विद देयर हेड संक इनटू देयर नेक्स, और अपना हेड संक इन देयर नेक्स, मतलब अपने नेक्स को संक कर लिए थे, छोटा कर लिए थे, ऐसे करके कर लिए थे, क्या कूद गए थे, जिससे कि हाँ यह मालूम है कि वो लोग सो रहे हैं। इस प्रकार भी सीगल सोते थे।
ठीक है। His father was preening the feathers on his white back. और इसके पिता क्या कर रहे थे? He was preening feathers on his white back. उसका white back जो था, पीठ था, हाँ, और तो feathers को ठीक कर रहे थे, उसको सजा रहे थे feathers को, ऊपर खापर जो feathers उसका पंख हो गए थे उसको ठीक कर रहे थे, ठीक है। उसको बोला जाता है preening. Preening means making an effort to maintain feathers. feathers को maintain कर रहे थे, ठीक है। Is it clear? Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ ही उसके तरफ देख रही थी, ठीक है। उसके पिता बिल्कुल दूसरे ध्यान में थे, लेकिन इसका माँ का ध्यान आकर्षित था अपने छोटे बच्चे यंग सीगल के तरफ। ओके, she was standing on a little high hump on the plateau. और इसकी माँ कहाँ थी? यंग सीगल की माँ कहाँ थी? एक हाई हम्प पे खड़ी थी। ओके, हम्प क्या हुआ? ध्यान देना बेटा, ये मानो पहाड़ है, प्लेटू है, ये पथरीला भाग है, ये जो हो गया हम्प हो गया। जैसे ऊंट का कुबर देखते हो ना, कैमल का, उसको बोलते हैं हम्प। तो ऐसा जगह पर इसकी माँ खड़ी थी, इस पर, यहाँ पर, ठीक है। वो क्लिफ पर थी, चट्टान पर ही थी, लेकिन वो चट्टान जो था, वो जो पहाड़ी के ऊपर ही चट्टान होगा ना, इस प्रकार से था। तो टॉप वाला पोजीशन जो होता है उसको हम्प से तुलना किया है लेखक ने। She sat on the high hump on the plateau, प्लेट्यू के ऊपर। Her white breast thrust forward, उसका शरीर, सामने का शरीर जो था, हाँ, उसके माँ का, उस यंग सीगल के माँ का, वो टच हो जा रहा था स्टोन से। ओके, नाउ एंड अगेन शी टोर एट ए पीस ऑफ फिश। और बार बार, हाँ, बार बार वो क्या कर रही थी इसकी माँ? एक टुकड़ा ली थी मछली का एक पीस ली थी, उसी को बार बार चीर रही थी, उसको फाड़ रही थी। शी वाज टीयरिंग इट टू पीसेस। बार बार यह दिखाने उसको उसके मन में लालच देना चाहती थी, अपने यंग सीगल के मन में लालच देना चाहती थी कि क्या लालच देना चाहती थी? कि उड़ कर आओ खाने के लिए, उड़ कर आओ इस मछली को खाने के लिए। तो लालच दे रही थी सामने में। That lay at her feet, अपने पैर से दबा कर रखी थी। And then scraped each side of her beak on the rock, और अपना चोंच को बार बार पथरीला जगह पर वो रगड़ रही थी, जो शार्प कर रही थी। क्यों रगड़ रही थी? शार्प करने के लिए अपने चोंच को। वो लोग बार बार शार्प करते हैं जिससे कि कोई भी चीज़ को अच्छा से वो लोग चीर सके, कोई मछली वगैरह को। The sight of the food maddened him, और जैसे यह दृश्य देखा यंग सीगल ने, अपनी माँ के सामने जो दृश्य देखा, माँ उसकी एक मछली के टुकड़ा लिए हुए उसको चीर रही थी खाने के लिए बार बार। जैसे इस दृश्य को देखा, ये सीगल जो है पागल हो गया, उसे भूख लगी थी और पागल हो गया खाने के लिए, विचलित हो गया, ठीक है। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. और उसे मालूम था, उसे कितना अच्छा लगता है इस प्रकार से मछली के टुकड़े को चीर चीर कर खाना। ये उसे याद आने लगा, किसके मन में? यंग सीगल के मन में। Scraping his beak now and again to wet. उस wet means उसको चीरने के लिए, wet means to sharpen, wet means to sharpen. अपने इसे भी बहुत अच्छा लगता था यंग सीगल को कि ये भी बार बार उसकी माँ जैसी खा रही थी मछली के टुकड़े को चीर चीर, ये भी बार बार खाए, इसको मन कर रहा था, और अपने चोंच को ऐसा रगड़े, किसके साथ? पत्थर पे रगड़े और ये चीर चीर कर खाए मछली के टुकड़े को। इसको कितना मन कर रहा था, हाँ, उसको याद आ रहा था कि काश मैं भी ऐसा कर सकता, मैं भी ऐसा खा सकता। ओके, Okay, my dear, that's all for the explanation today. I'll continue this lesson again in the next class. And now get ready for the doubt classes.
ब्लेजिंग, ब्लेजिंग मतलब शाइनिंग, हॉट, ब्लेजिंग मीन्स हॉट भी होता है, सन का रोशनी जो गिरता है ना उस ठंडा थोड़ी रहता है। इट वॉज ब्लेजिंग ऑन द रॉक, हाँ, ऑन द लेज, मतलब उसकी रोशनी पड़ रहे थे। ब्लेजिंग मीन्स एक तरह सनसाइन समझ लो, हॉट सनसाइन। वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, हाँ। द हॉट सन, हाँ, वॉज ब्लेजिंग ऑन द ग्राउंड और ब्लेजिंग इन द फील्ड, ओके। ब्लेजिंग समर ऑल्सो यू कैन से, यस, हॉट समर, ब्लेजिंग समर भी कर सकते हो। डॉजिंग, डॉजिंग मीन्स लुकिंग, लुकिंग भी होता है डॉजिंग मीन्स, गेजिंग, लुकिंग, डॉजिंग। प्रीनिंग, मेंटेनिंग फेदर्स, मेंटेन, प्रीनिंग मीन्स मेंटेनिंग फेदर्स, इधर उधर फेदर्स उसके हो गए तो उसको मेंटेन कर रहा था उसके पिता, किसके, यंग सीगल के, ओके। थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना, डराना। टॉन्टिंग, टॉन्टिंग मीन्स कमेंटिंग, ताना देना, कमेंटिंग। क्लिफ, क्लिफ मीन्स रॉक, माउंटेनियस रॉक, माउंटेनस रॉक। चोटी, चोटी नहीं कर सकते लेकिन, चोटी भी कर सकते लेकिन पूरा पथरीला जगह रहता है, हाँ। डॉजिंग मीन्स लुकिंग होता है। डॉजिंग, दिखाओ द स्पेलिंग। अच्छा, ये डी ओ जेड जेड आई है, डॉजिंग विद देयर हेड्स। अच्छा, पूरा सेंटेंस, सॉरी, हम दूसरा डॉजिंग सुन रहे। सो डॉजिंग का मतलब वही मैं बताया था, तुम लोग एक्सप्लेन किया था। ये डॉजिंग तुम बोल रहे, स्पेलिंग बोल दिया करो बेटा, हाँ। डॉजिंग मतलब स्लीपिंग ही होता है, मैंने कहीं बहाना करके सो रहे थे, हाँ, सो रहा था ये यंग सीगल, उसी से रिलेटेड डॉजिंग, हाँ। अलग अलग कंटेक्स्ट में इसका अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। यहाँ पर मतलब है स्लीपिंग, ठीक है। बैठ जाओ। एनीबडी एल्स? हाँ, डेस्परेट, डेस्परेट मीन्स दुखी होना, दुखी होना, टू फील अनहैप्पी। ही फेल्ट डेस्परेट, ही फेल्ट अनहैप्पी, ठीक है, दुखी होना। Cowardice, cowardice means an act of being a coward, means not brave. Cowardice means not brave, not courageous or not brave. Anybody else? Okay. Thank you.